Hello friends, this lesson is about how to prepare for engineering mathematics section. I want to tell you engineering mathematics contains 15 marks. 15 marks is general aptitude out of 100 and 15 marks is engineering mathematics. So if you will cover this 30 marks in a very nicely manner, अब इतना हो सकता है कि 30 में से 30 भी अचीव कर लो या 28 और 29 बहुत easily हो सकता है. The problem which students generally faces is they start preparing in the month of January, which is not the correct idea to do that. Right. So before discussing any further, I would like to introduce myself. My name is Harshit Agarwal, graduated from NIT Nagpur in 2008. I have cleared the Indian Engineering Service Examination and GATE examination. I have got the offer letter from most of the Maharatna and Navratna companies. Regarding course fee, there is no course fee as such, but your contributions are always welcomed. You can also follow me on the specified link. So first of all, we will discuss the syllabus. With the syllabus, we will be discussing some important part of engineering mathematics. I mean, आपको कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. First is linear algebra. From this linear algebra section, you will be facing question from eigenvalues and eigenvectors. आपको eigenvalues find करना आना चाहिए as well as vectors, right? आपको मैट्रिसेस बहुत अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए बिकॉज यू विल बी फेसिंग द क्वेश्चन ऑन द रैंक एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के बारे में फुल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सी ये छोटे छोटे टॉपिक्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, स्कोरिंग बहुत ज़्यादा है. फिर लीनियर इक्वेशंस, एज यू ऑलरेडी नो, एक बुक आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू वन पर्टिकुलर बुक, गो थ्रू दैट पर्टिकुलर बुक कंप्लीटली, बहुत ईजी होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेक्शन. फिर देन कम्स द कैलकुलस पार्ट. फ्रॉम दिस कैलकुलस पार्ट यू विल बी फेसिंग क्वेश्चन ऑन लिमिट्स, यू विल बी फेसिंग क्वेश्चन ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा. आपको लिमिट्स का क्वेश्चन फाइंड करना आना चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन फाइंड करना आना चाहिए. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड द कर्ल. ये जो सिलेबस है, कैलकुलस इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, लीनियर अलजेब्रा इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस. मैं इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूं कि जहां जहां से क्वेश्चन आता है. एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर आपको गो थ्रू करना पड़ेगा टू गेट अ कंप्लीट आइडिया ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेक्शन. आई विल बी डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एज वेल इन माय अपकमिंग लेसन्स. Next comes the differential equations. In differential equations, you will be facing question on first order equation and you have to prepare for both linear और non-linear, दोनों के लिए prepare करना है, and Euler equations भी आपको prepare करना है. फिर complex analysis करना होगा. For example, Taylor series. Taylor series बहुत important series है, बहुत बार question आता है, and Cauchy-Riemann equations भी बहुत important है. तो आपको ये मैथ्स का पोर्शन go through करना होगा completely. मैं यहाँ पे मैथ्स का कोर्स डालूंगा. I will be putting up the maths course very soon so that you can revise your concepts. Then comes the numerical methods. In numerical methods, you will be facing question on Newton-Raphson methods, integration by trapezoidal and Simpson method. These are the two important rules you have to keep in your mind, and you will be facing question on probability and statistics. From probability, you will be facing joint and conditional probability. You have to understand what is the conditional probability, what is the joint probability, और आपको ये probability वाला topic numerical ability में भी help करेगा. It will help you out. The crux here is that 15 marks of engineering mathematics you have to prepare in a very nice manner because these 15 marks are the very easy marks. और 30 marks अगर आप ये complete कर लोगे तो बहुत easy होगा गेट का पेपर सॉल्व करने के लिए. आफ्टर दैट यू विल बी फेसिंग क्वेश्चन और लेप्लास ट्रांसफॉर्म, उसमें इन्वर्स ट्रांसफॉर्म और लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ये दोनों आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. मैथ्स आपको बहुत क्लियरली आना चाहिए, लास्ट मोमेंट के लिए नहीं रखना है. Then comes the mathematical logic. You will be facing question related to graph connectivity, relations and functions, all those kinds of things. Now here are some strategies and tips. First of all, the book you have to follow, B.S. Garewal. It is a very good book. Go through this book completely in one go. Revise twice, thrice. Right. एंड आपको जो बीटेक में आपने जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कवर किया है, गो थ्रू दैट एज वेल. तो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस मोर और लेस सेम है जो बीटेक का सिलेबस है. टोटल 15 मार्क्स क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड है. थोड़ा सा सोचना प्रीवियस ईयर के पेपर से. जनरली जो कट ऑफ जाता है गेट का, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच और सिविल ब्रांच, द कट ऑफ गोज अराउंड 25, 26 और 27 एंड एट मैक्स 30, राइट. इफ़ यू प्रिपेयर फॉर दिस जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल मैथमेटिक्स सेक्शन, अगर आप एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपका कट ऑफ वहीं पे ओवर हो जाएगा. आराम से आप कट ऑफ अचीव कर सकते हो. एंड नेक्स्ट कम योर टेक्निकल पार्ट, द नेक्स्ट 70 मार्क्स विच कंप्राइजेज ऑफ योर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वट एवर इंजीनियरिंग यू हैव सेलेक्टेड, राइट. तो आप उस पर फोकस कर सकते हो बहुत ईजिली. फिर उसके बाद आपको इंक्रीज योर स्पीड एंड एम, एक्यूरेसी मेंटेन करना है, स्पीड मेंटेन करना है.
only subject having highest marks. This is the only subject, if I'll talk of the technical portion apart from general aptitude, which is having the highest marks and is very easy to score. अब इसको prepare कैसे करना, how to prepare for that, for engineering mathematics? Take 1 month एंड प्रैक्टिस 2 to 3 hours डेली फॉर इंजीनियरिंग मैथ्स. आपका बहुत अच्छे से इक्वेशन सेट हो जाएगा इंजीनियरिंग मैथ्स के साथ. और कीप सॉल्विंग इंजीनियरिंग मैथ्स फॉर 1 hour डेली. जैसे एप्टीट्यूड, गिव 1 hour फॉर एप्टीट्यूड और 1 hour फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. व्हाट आई जनरली प्रेफर इज for take one particular month, apart from your technical subjects, keep aside 2 to 3 hours for engineering mathematics. टेक्निकल सब्जेक्ट वैसे ही चलने दो, 2-3 hours जो है वो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए अपने पास रखो और उसको रिवाइज करते रहो. कीप रिवाइजिंग, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस, गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो आपको ये नहीं लगेगा कि जनवरी मंथ में, इन द मंथ ऑफ जनवरी, यू विल बी नॉट बी फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट माई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज लेफ्ट आउट और माई जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन इज लेफ्ट आउट. आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मेरा एप्टीट्यूड सेक्शन बचा है या मेरा मैथमेटिक्स सेक्शन बचा है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट प्रीवियसली. इन द मंथ ऑफ जनवरी यू just need to revise all your technical portion. Don't keep the month of January for any new topic. ठीक है. Then one more important thing, go through one particular book. Don't take, ये ऐसा नहीं करना 4 to 5 different books ले लियो और उसको पढ़ रहे हैं. Go through one particular book and do revision. Make notes बनाने बहुत ऐसे, which will cover all the important topics, all the important formulas जितना भी मैथ्स का वो एक साइड पे लिख लो, नोट्स अच्छे से बना लो और उसको बाद में आप go through कर सकते हो. Again, don't leave mathematics and aptitude section for last. आफ्टर यू कंप्लीट द सिलेबस, मूव ऑन टू सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स. जैसे ये हो जाता है फिर आप उसको सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो. सी 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 65 मार्क्स, 65 क्वेश्चंस, 65 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड के हैं. एंड दीज 20 क्वेश्चंस कैरी 30 मार्क्स. तो आप अगर ये 20 क्वेश्चंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आप अच्छे से 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हो. एंड नेक्स्ट 45 क्वेश्चन विल बी योर टेक्निकल पार्ट रिलेटेड टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपको फोकस करना होगा. Don't attempt question in exam if you have a doubt as negative marking is applicable. There is a negative marking in GATE examination. अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप उसको प्लीज अटेम्प्ट ना करें. Pay attention to small details. A single misplaced sign can change the answer. आपको small details पे focus करना होगा. And always take the time to read the question properly so you don't lose any key point. आप क्वेश्चन को 2 या 3 या 4 बार पढ़ो so that you don't leave any important information. If you have any further doubt, you can ask me in the comment section. Thanks a lot from my side. This is Harshit Agarwal.